Audio Jungle. माय फ्रेंड्स, दिस इज गैरी एंड आज आपके लिए बहुत खुश की बात है। आज मेरे पास सॉलिसिटर आए हैं। जो आपने मुझसे दिवाली एपिसोड और हैप्पी न्यू ईयर का एपिसोड पूछा था, आपने कहा था एक सॉलिसिटर को लेकर आओ जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे। बिकॉज आपको पता है आई एम नॉट इमिग्रेशन सॉलिसिटर, मैं तो एज ए बड़ा भाई हूं जो आपकी हेल्प कर रहा हूं 17 साल से एज ए फॉर्मर स्टूडेंट इस कंट्री में। पर आपके लिए एक सॉलिसिटर जी आए हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूं। ये चौहान जी हैं और इन्होंने खुद मेरा चैनल देखकर सिलेक्ट मुझे किया और ये बिल्कुल कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, ना मैंने दिया ना इन्होंने, और खुद वो सच में आगे आए हैं एज ए कम्युनिटी आपकी हेल्प करने के लिए। और जो बच्चे बहुत सारे नर्वस हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कि नेपाल, श्रीलंका से, उनकी बातों का वो आज आंसर करेंगे। वेलकम चौहान जी, आपने मेरे टाइम निकाला है। मैं आप मेरे लिए पहले गेस्ट हो जो जिसने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो वेलकम चौहान जी। जी गैरी जी, thank you very much as well for inviting me here. This is a great honor and I mean I'll be happy to answer any question. कोई भी सवाल हो, obviously I'll be happy to answer any question whatever you have. Chauhan ji, I have done a homework, so I got few questions to ask. Sorry, I do homework. So Chauhan ji, my first question is to you. Please tell me about yourself. Means आप कैसे इस कंट्री में आए और कैसे क्या किया आपने स्टडी में? Please tell me a little bit about yourself. Right. My name is Intisar Ali Chauhan. I'm from Pakistan, from Lahore, in fact, and I did my LLB from Lahore and came here to study, and then I took QLTT, that's Qualified Lawyers Transfer Test. So उसमें I did it one go and I qualified as a solicitor in 2003. Okay. And since then I've been practicing immigration law. So I've been working in this field for around, in fact, more than 17 years now. I got 17 experience as a former student and you got 17 experience as a solicitor. So audience, please, Chauhan ji is taking time. Please like the video. I need nearly 3000 like from this video because Chauhan ji is giving his time. So please जितना like आप करोगे अगली बार उतना वीडियो में अच्छा लेकर आऊंगा। तो प्लीज लाइक करते जाना, दिल खोल करना, ये टैक्स फ्री है। चौहान जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको इस टाइम वॉच कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, किसी और भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के। अगर वो सॉलिसिटर बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए इस कंट्री में? प्लीज थोड़ा बताएंगे। Solicitor बनने के लिए, I mean, obviously, first of all, you need to have the right frame of mind कि आपने you need to choose your goals कि आप वाकई you want to become a lawyer. तो अगर they are already qualified lawyer overseas like India और पाकिस्तान या और मुल्कों से, then there is a like transfer test. say पहले तो QLTT हुआ करता था हमारे ज़माने में, अब QLTS है, that's Qualified Lawyers Transfer Testing System. तो उसमें पहले I mean they used to take about 4 papers. तो अगर आप 4 papers में क्लियर कर जाते हैं तो obviously they I mean approve you, they I mean give you a certificate confirming you are a qualified solicitor. और यहाँ पे आप I mean you need to have IELTS as well और 7 papers हैं। तो it's up to you. Obviously आप in parts दे दें, in one go दे दें if you are confident, that much confident enough. तो I mean इतना अब उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान है, मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत मुश्किल है। Obviously, I mean, if you are ambitious enough कि आपने solicitor बनना है, और I must tell you, this is really rewarding because at the end of the day, you are in fact helping people out. तो उसमें I mean, if you get success in like, because मैं mainly I've been dealing with immigration law for about 17 years now. So इसमें जब भी सक्सेस होती है, obviously it goes I mean in my record that I have dealt with it, लेकिन एक खुशी भी होती है कि obviously के immigration matters, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो सबसे बड़ा मसला उनका immigration का ही होता है। किसी तरह कोई immigration के मसाइल उनके बगैर किसी problems के sort out हो जाएं। और I must tell you कि यहाँ पे कई ऐसी applications हैं like स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशंस है, Tier 2 या Tier 5 या Tier 4 एप्लीकेशंस है, तो निस्बतन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन दूसरी लाइक जिसमें ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं, या Tier 1 एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, स्टार्टअप वीजा है, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इमिग्रेशन होम ऑफिस ये जरूर कहते हैं कि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। तो इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू कि इवन स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू अ रिफ्यूजल। इवन आप कहीं पहले तो खैर पेपर एप्लीकेशन थी, कहीं आप टिक बॉक्स पे वो चेक लगाना भूल जाते हैं, टिक लगाना भूल जाते हैं, इवन ऑन दैट बेसिस योर एप्लीकेशन कैन बी रिफ्यूज्ड। लेकिन अब ये है कि रिगार्डिंग द प्रोफेशन एज अ सोलिसिटर,
I mean, as an immigration solicitor, I must tell you, it's very rewarding. वेरी रिवॉर्डिंग। थैंक्स वेरी मच। आपने बताया है कि कौन सॉलिसिटर इंडिया पाकिस्तान से आकर यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। टफ नहीं आपने बताया, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो हर फील्ड में है, इसमें नहीं है। और आपने ये भी बताया कि आप किस तरह 17 साल पहले आकर यहाँ अपना करियर बनाया। चलिए बात करते हैं मेरे स्टूडेंट के लिए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, क्या पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है कि नहीं है? Post study work visa, it has already been announced, और ये apply, it will be applicable from next summer 2021. तो जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री में फ्रॉम दिस सितंबर, सो दे विल बी एलिजिबल। So they don't need to worry about it because लोग बोलते हैं साइन नहीं हुआ पार्लियामेंट में, they don't need to worry about it ना। मैंने खुद गवर्नमेंट वेबसाइट, they don't need to worry about it। Thanks very much। No need। अच्छा एक चीज बच्चे और पूछते पहले पोस्ट वर्क वीजा, कैन दे गेट 2 times PSW इन देयर लाइफ? जैसे एक मास्टर की फिर मास्टर करें, कैन दे गेट ट्वाइस? No really, no really। ये सिर्फ I mean once in a lifetime opportunity sort of thing है। So एक दफा ही आपको मिलेगा, दूसरी दफा अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं लास्ट टाइम जब PSW था, तो दोबारा you won't be eligible unfortunately। ओके एक और क्वेश्चन जो इतना आपके इमिग्रेशन के लिए नहीं है लेकिन बच्चे पूछते हैं, अगर किसी ने मास्टर कंप्लीट कर ली एज पर यूके वीआई रूल्स, जैसे कायस में लिखा, कैन दे डू अनदर मास्टर और कैन दे डू पीएचडी वंस दे फिनिश देयर कोर्स व्हाट दे केम टू यूके? Of course, I mean why not? I mean मास्टर एक दफा कर लिया है obviously, तो पीएचडी के लिए तो कोई इशू नहीं है, तो क्योंकि मास्टर पीएचडी तो इससे like higher qualification, and other masters obviously depends on the I mean कि आपको अगली यूनिवर्सिटी कैश इशू करती है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर ने कैश इशू कर दिया it means they are satisfied that there is a good reason why you are doing another masters after having done one master already। ओके एक और पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बच्चे बहुत पूछते हैं स्पाउस को भी मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, उनके जो मास्टर डिग्री करने आते हैं? Yeah, dependents are allowed, yes, dependents are allowed। And one more thing Gary, क्योंकि from 1st of January I mean they're bringing new rules regarding skilled workers। जो tier 2 वीजा था वो उन्होंने obviously replace किया from skilled workers to skilled workers। इसमें यह है कि पहले होता था कि आपको जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे they have to complete their degrees and switch to go to a work visa like tier 2 visa, लेकिन अभी अब ऐसी कोई restriction नहीं है। So this is a good news for those students who come and who in the middle of the studies or by the end of the studies find an employer who's willing and able to sponsor them, so they can switch while remaining in this country। Oh, they can switch easily. Okay. Oh, that's really good. Yes, they can switch easily। Secondly, जो minimum salary है पहले 30,000 हुआ करती थी, अब now they are going to reduce it to 25,600। और सैलरी भी कम होगी, अच्छा 2000, ओके 25,600। और ये तो अच्छी बात। और एक और चीज कि इसमें पहले था कि एडवर्टाइजमेंट जो था ना RLMT रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट, दैट वाज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, लेकिन अब वो भी वेव हो गई है। तो it means जो employer है, if they have license, they can just, if they find a suitable worker, they can just sponsor that student or any person living legally in this country, apart from those who come who have arrived in this country like on a short term visa like a visit visas वगैरह। अरे आपने तो चौहान जी वो बात बोली है कि जो आपने एक न्यूज किसी ने नहीं दी होगी, मुझे भी नहीं पता। जब मैं यूके आया था, जैसे आपने मेरे एम्प्लॉयर को मुझे लेना है तो उसको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती क्योंकि मैं इंडियन था एंड उसको दिखाना पड़ता कि ही कुड नॉट फाइंड एनीवन इन यूके, दैट्स व्हाई ही इज चूजिंग मी टू डू इट। अगर ये चीज चलेगी है जनवरी 2021 से, इसका मतलब बच्चे जो यूके में आ रहे हैं मेरे ख्याल में उनके लिए अच्छी बात है ना। तो बहुत good news, in fact it's a very good news for all of the migrants who are like जो यहाँ पे एक अच्छी जॉब अगर उन्हें ऑफर होती है और स्पॉन्सर के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, so it's a fairly easy process now। Okay, good। So मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये है, जब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जिस बच्चे पूछते हैं तो स्पॉस क्या उनके साथ यूके में फर्स्ट डे से स्टडी के टाइम पर होगी तभी मिलेगा कि जो डिपेंडेंट तब अप्लाई कर सकता है जब उसका स्पॉस का वीजा कोर्स खत्म हो रहा है, then spouse can join that person, dependent can join later that day and she or he will still get a PSW। जो मेरे कहने का मतलब ये शॉर्ट उसमें बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का शादी कर आता है, उसकी बीवी उसके साथ पहले 2 साल नहीं आती जब वो स्टडी करता है, तो उसके बाद जब 2 साल कंप्लीट होता है मैं बीवी को लेकर आता हूँ, तो क्या उसकी भी 2 साल उसके साथ यहाँ पर यूके में, तब उसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि वो 2 साल तो पहले इंडिया में थी, कि उसको फर्स्ट डे से यूके आना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ? ये मेरे कहने का मतलब। सॉरी
ओके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट डजंट मैटर कि स्पाउस या डिपेंडेंट कब ज्वाइन करता है मेन एप्लीकेंट को। एज फार एज दे आर इन दिस कंट्री दे कैन स्विच फ्रॉम हेयर टू अ पीएसडब्ल्यू वीजा और डिपेंडेंट वीजा। और जब पीएसडब्ल्यू मिल जाता है तो वो ऑब्वियसली ओवरसीज से भी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। ओके ओवरसीज। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने क्वेश्चन पोस्ट। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये है जो किसी ने आज तक आंसर नहीं किया है, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू आस्क। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ब्रेक्ट एग्जिस्ट होने जा रहा है जनवरी में, जो कि सिर्फ एक 1.5 मंथ, क्या इन कंक्लूजन में क्या ये इंडियन पाकिस्तान जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं उनके लिए अच्छा है बुरा है, कैसे रूल उनका इंपैक्ट करेगा इन फ्यूचर अगर उनको अपनी लाइफ यूके में सेटल करनी है आगे जाकर? लेकिन जिस तरह के रूल्स और पॉलिसीज आ रही हैं, दे आर, आई मीन, आई मस्ट टेल यू, दे आर वेरी हेल्पफुल. So it's becoming much easier for those who have business here, who have sponsorship license, to sponsor overseas workers. Either they are living in this country or they are living abroad. So I mean, tell you that it's things are going really, I mean, much more simpler now. अब बहुत आसानी से, obviously, you can come here, you can work here, you can study here, and you can apply for a settlement visa after completing 5 years on a skilled worker visa. स्किल्ड वर्क वीजा। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करते जाना। चौहान जी वो बातें बता रहे हैं जो कि पता नहीं होती पब्लिक को, लो प्लीज लाइक करते हैं, लाइक आपके लिए अच्छा, जितना लाइक करोगे अगला पर्सन भी उतनी जल्दी आएगा, तो प्लीज लाइक करते हैं चौहान जी। चौहान जी चलो आपने तो बहुत अच्छा बताया ब्रेक्ट एग्जिस्ट के बारे में। अच्छा जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टडी करने यूके आते हैं, लेट्स सिंपल वो स्टडी करते हैं एज पर देयर कैस्ट जो यूके, उसके बाद उनके पास कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें वो यूके में अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, और उनको कौन कौन से रूट हैं बताएंगे थोड़ा सा आप प्लीज? स्टडी के लिए, आई मीन, बस स्टडी के लिए बातें हैं, अब डिपेंड करता है कि कौन सी डिग्री करते हैं और कितने साल। लाइक बैचलर्स पे आते हैं तो 3 साल यहाँ पे है, मास्टर्स में है तो 1 या 2 साल है। उसके बाद ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट समर पीएसडब्ल्यू आ रहा है जो 2 साल का वीजा होगा। इस दौरान अगर आपको वर्क परमिट की ऑप्शन आती है, आई मीन इफ यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी, तो आप वर्क जो स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है। नॉर्मली यह है कि स्किल्ड वर्कर 5 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए, और अनफॉर्चुनेटली जो 5 साल का टाइम है वो जो पिछला टाइम है ना एज ए स्टूडेंट या पीएसडब्ल्यू, वो काउंट नहीं होता। ठीक है। या दूसरी ऑप्शन 10 साल की रेजिडेंस है, 10 साल के लिए इट हैज टू बी लीगल एंड कंटिन्यूअस। तो 10 साल में पीएसडब्ल्यू काउंट होता होगा फिर कि नहीं होता होगा? 10 साल में पीएसडब्ल्यू, तो लॉन्ग रेजिडेंस का वीजा है ना, उसमें है कि कोई भी वीजा हो, इट कैन बी स्टूडेंट, पीएसडब्ल्यू, स्पाउस, डिपेंडेंट, स्किल्ड वर्कर्स, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, एनी वीजा। अगर आप if you have completed 10 years in a combination of any legal visas, you are eligible to apply for ILR on that basis. Okay, so doesn't matter visa। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो लॉर्डियंस प्लीज लाइक करते जाइए करते जाइए करते जाइए। चौहान जी एक चीज मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने क्लियर कर दिया स्टूडेंट के ऑप्शंस। अच्छा बहुत सारे बच्चे मेरे पूछते हैं न्यू बॉर्न बेबी क्या चीज है, मुझे क्या, मैंने न्यू बॉर्न बेबी होता है तो कुछ है ऐसा, कुछ एडवांटेज इंडियन पाकिस्तानी भाई बहनों को कुछ है? न्यूबॉर्न बेबी ऑब्वियसली डिपेंड्स के पेरेंट्स का वीजा स्टेटस क्या है। अगर पेरेंट्स के पास इंडेफिनिट है और इंडेफिनिट के बाद बच्चे की बर्थ होती है तो वो दैट चाइल्ड इज अ ब्रिटिश सिटीजन बाय बर्थ। और अगर पेरेंट्स के पास टेम्परेरी वीजा है तो बच्चे के पास भी वही वीजा, ओके, बच्चा उसी वीजा का एलिजिबल होगा जो पेरेंट्स का वीजा है। ओके, इवन बच्चा यहाँ पैदा भी होता है तब भी? जी ऐसा ही। ओके तो ये तो हो गया, आपने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं जो उसके बारे में, डिपेंडेंट के, पीएसडब्ल्यू के बारे में, और आपने बहुत ही क्लियरली बताया है कि पीएसडब्ल्यू के बारे में। तो मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा बिफोर आई विल गो टू आस्क माय क्वेश्चन, मेरे ऑडियंस ने लाइव पूछे क्वेश्चन। आप क्या बच्चों को, देखिए मैं एज ए बड़ा भाई, मैं सॉलिसिटर, तो मैं बस यही बोलता हूँ एक चीज हो कि यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी मत बनने देना। हर चीज यूके का फॉलो करो लॉ, नहीं तो अगर रिकॉर्ड आपका बन गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, आप डॉक्टर भी हो। तो कुछ बच्चों को फीडबैक देंगे जो आ रहे इंडिया पाकिस्तान से, उनको क्या चीजें ऐसी यहाँ फॉलो करनी चाहिए ताकि आगे जाकर उनकी लाइफ ईजी हो सके एज ए सॉलिसिटर और एज ए सिटीजन ऑफ ब्रिटेन, बोथ ऑफ देम, व्हिच वन यू प्लीज, इफ यू कैन टेल। राइट, जी उनके लिए आई मीन मैं यही कहूंगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस उनके वीजा पे हैं, आई मीन दे मस्ट फॉलो एंड कंप्लाई विद ऑल द इमिग्रेशन रूल्स। और आई मीन आगे जाके और भी बहुत सी ऑप्शंस, कैटेगरीज आ रही हैं, तो जिसमें अभी अगर फर्स्ट करें स्किल्ड में नहीं आती तो कोई और आगे आई गेस जो टियर 1 जो पहले एचएसएम भी हुआ करता था, उस सॉर्ट ऑफ वीजा कैटेगरी के बारे में भी कंसिडर किया जा रहा है। वो शायद दोबारा ले आए, लेकिन उस तरह नहीं लाएंगे जिस तरह के पहले हुआ करता था, क्योंकि वो लास्ट टाइम अब्यूज बहुत हुआ था। तो इसमें आई मीन आई मस्ट टेल यू के ऑप्शंस आगे बहुत आ रही हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको कोई लाइक आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द रूल्स जाके आप कोई और ऑप्शन को कंसिडर करें। आई वुड नॉट एडवाइज दैट, क्योंकि ये आपका करियर भी खराब।
So I don't think that is worth, like, I mean, going for I would say like an option which is not legal. So उसके बारे में obviously advice करूंगा कि उस options उस routes को मत लें, क्योंकि आगे options आगे categories और आ रही हैं जिसमें आप अभी qualify नहीं करते तो बाद में आप qualify कर पाएंगे. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर, ग्लोबल टैलेंट वीजा क्या है? बच्चे पूछते हैं ग्लोबल टैलेंट वीजा इजीली मिल जाता है, क्या है ग्लोबल टैलेंट वीजा? Global talent visa, it's a tough one, I must tell you. Global talent, it means it's for those who are like considered as global leaders. Okay. So unless and until you have some sort of exceptional skills or qualities and academic record, तो वो as such it's very tough. और इसमें बहुत कम लोगों को मिला है. बहुत से लोगों ने अप्लाई जरूर किया है, लेकिन इसका क्राइटेरिया इतना टफ है, तो ये बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं इसमें. तो इट्स नॉट दैट इजी. ओके, सो ऑडियंस प्लीज लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. मेरा क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है, सोहेल जी हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है, आर देयर एनी लीगल एजेंसीज दैट कैन हेल्प इन गेटिंग स्पॉन्सर जॉब आफ्टर स्टडी? कैन वी गेट ए पीआर इफ वी स्पॉन्सर जॉब व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू आवर स्टडी इन यूके? कुछ एजेंसीज हैं, लीगल एजेंसीज हु फाइंड अ स्पॉन्सर फॉर who can find a sponsor for a jobs after study? ये इतना इमिग्रेशन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा स्टडी है. कोई ऐसी एजेंसीज यूके में जो बच्चों को स्पॉन्सर करती है, लीगल मतलब कि लीगल जो यूके जो कि गवर्नमेंट और यूके ने बनाई हुई है, जो बच्चों को स्पॉन्सर करती हैं जॉब्स जब वो स्टडी कंप्लीट करते हैं यूके में? है कोई? नहीं, लीगल एजेंसीज नहीं है यहाँ पे. ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट एजेंसीज बहुत सारी हैं जो आपको जॉब जरूर तलाश करके दे सकती है. एंड डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयर कि अगर वो उसके पास लाइसेंस है तो वो वेदर द एम्प्लॉयर इज विलिंग एंड स्पॉन्सर यू फॉर वर्क वीजा और नॉट. ये एजेंसीज कोई ऐसी नहीं है कि आपको स्पॉन्सरशिप तलाश करके दे, तो कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है यहाँ पे. ओके, थैंक यू. आपने जनरल नॉर्मल तरीके से जॉब सर्च करनी है and you apply for the jobs, or it depends on the employer कि they invite you for interview or not, और उनके पास अगर लाइसेंस है, it's the employer's decision कि आपको स्पॉन्सर करते हैं या नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछा है, मैं 5-6 पूछूंगा, बहुत पूछे हैं, आपके टाइम इतना नहीं है. जुएब खालिद जी ने पूछा है कि सिंपल एग्जांपल, पीपल आर सेइंग दैट इट्स जस्ट अ ट्रैप टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट. यूके इमिग्रेशन वुड नॉट बी लाइक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा. दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज लॉट्स ऑफ देम आर गोइंग टू यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. ये एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कि आप समझ कि स्टूडेंट को ट्रैप कर रहे हैं यहाँ पर यूके वाले पढ़ने के लिए. I won't say it's an trap, क्योंकि ट्रैप तो है कि अगर आप ये लफ्ज उस वक्त यूज आप करते हैं जब ट्रैप करके आपसे कोई फायदा उठाया जाए, या इनफैक्ट आपको यहाँ अट्रैक्ट किया जा रहा है. I won't say ट्रैप है, ये अट्रैक्शन दी जा रही है कि यहाँ आप आए, यहाँ पढ़ें, यहाँ जॉब्स करें. सो इट ऑब्वियसली जहाँ पे आते हैं तो you get your degree, I mean you study here, you work here, so ultimately it goes in your benefit, in your country's benefit. So I won't say this is a trap. Okay. This is an attraction given to all the migrants कि come here, कि यहाँ पे आए और यहाँ पे I mean study करें. Obviously जहाँ आएंगे ट्यूशन फी पे करेंगे, it goes in I mean in their favor, but ultimately you are getting something out of it. So it's not a trap. ओके, गुड. उन्होंने पूछा, आई एम डूइंग एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट फॉर 24 मंथ्स, सो मुझे कितना वीजा मिलेगा इंक्लूडिंग पीएसडब्ल्यू? अगर वो 24 मंथ्स में कोर्स कर रहे हैं हरप्रीत सिंह जी, उनको पीएसडब्ल्यू कितना मिलेगा व्हेन शी इज डूइंग एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स? पीएसडब्ल्यू सबको 2 साल का ही मिलेगा जी. अच्छा, डजंट मैटर, चाहे वो 2 साल जी, चाहे वो 2 साल की डिग्री हो, चाहे 1 साल की या 3 साल की. अच्छा, और लेकिन if you are doing PhD, then you will get PSW for 3 years. 3 years. ओके, ये सब कंफर्म. फरहान हाय जी ने पूछा, हाय गैरी, कुड यू आस्क प्लीज हाउ टू एक्सटेंड ILR वीजा इन यूके? मेनी थैंक्स. Extend ILR visa. ILR is for indefinite leave to remain. इसको you don't need to extend it. This is for life. Okay, this is, I mean, this is for life. This is not a limit. ये time limit visa नहीं होता. This is indefinite leave to remain. It's for a indefinite period of time. इसको तो अगर अनलेस के उनके मतलब पुराना वीजा लगा हो, जो स्टैंप लगती थी, जो स्टिकर लगते थे पासपोर्ट पे, और दे वांट टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट बायोमेट्रिक कार्ड, तो उसके लिए अब एक एप्लीकेशन है, वो ट्रांसफर कंडीशन TOC, तो दैट्स एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो आपका वीजा उसमें बायोमेट्रिक कार्ड में ट्रांसफर हो जाता है. ओके, एक क्वेश्चन कार्तिक छाबड़ा जी ने पूछा है, बस 2 ही लूंगा, एक इसके बाद आप मुझे बता टाइम. कार्तिक छाबड़ा ने पूछा कि अबाउट परमानेंट रेजिडेंसी, लिखा उन्होंने हाई टाइटल, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर गेटिंग PR? इस कंट्री PR किस तरह मिलती है? दैट्स ही मेंट. डिफरेंट, आई मीन
ये सवाल ऐसा है, ऑब्वियसली इसका जवाब मैं 2 जुमलों में नहीं दे सकूंगा, क्योंकि PR मींस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसमें 10 years लॉन्ग रेजिडेंस है, इसमें जो टीयर 2 5 years ऑन टीयर 2 है, 5 years ऑन टीयर 2 आई मीन टीयर 2 जनरल रिलीजियस मिनिस्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, इसके अलावा टीयर एंटरप्रेन्योर है, इनोवेटर है, आई मीन काफी सारी जो कैटेगरीज हैं, दे लीड टू सेटलमेंट। तो इसमें ब्रीफली आंसर नहीं किया जा सकता। ओके, एक क्वेश्चन अगला पूछा है अर्जुन शेख जी ने, कौन सा वीजा चाहिए सेल्फ एम्प्लॉय होने के लिए? आई मीन दैट कौन सा वीजा चाहिए बिजनेस करने के लिए? What visa? But just he needs the title of the business. What visa you call if somebody wants to do business here? That's it. बिजनेस वीजा के लिए टीयर 1 बिजनेस के लिए स्टार्टअप वीजा है, इनोवेटर वीजा है। ये 2 कैटेगरीज हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। बट इन बोथ कैटेगरीज जो बिजनेस आइडिया है, इट हैज नीड्स टू बी एन इनोवेटिव आइडिया, कि ये एक लाइक इनोवेशन हो आपके आइडिया में। मतलब एक रेगुलर बिजनेस करने के लिए वो आपको वीजा नहीं देंगे, वो एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए जिसके लिए आपको इनोवेटर वीजा या स्टार्टअप वीजा मिलेगा। सेकेंडली, व्हेन यू कम एज ए डिपेंडेंट ऑफ समवन, लाइक आप अगर आपकी मिसेस के पास टीयर 2 या स्किल्ड वर्कर वीजा है, तो जब आप डिपेंडेंट आते हैं तो यू आर अलाउड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर अलाउड टू डू बिजनेस। तो वो डिपेंडेंट कैटेगरी में भी दे आर अलाउड टू डू बिजनेस एंड जॉब फुल टाइम। ओके, सो फाइन, थैंक्स वेरी मच। एक क्वेश्चन पूछा है स्मृति 16 ने, हेलो सर माय क्वेश्चन इज, क्या 12 पास स्टूडेंट बैचलर डिग्री में स्पाउस के साथ यूके आ सकते हैं या सिर्फ मास्टर डिग्री में स्पाउस के साथ जा सकते हैं यूके? सिर्फ मास्टर्स डिग्री में आ सकते हैं फिलहाल। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, बस लास्ट है, ज्यादा नहीं मुझे पता। गिविंग बर्थ टू ए बेबी ऑन स्टूडेंट वीजा इन यूके, व्हाट वीजा स्टेटस डू पेरेंट्स हैव आफ्टर बेबी बर्थ एंड हाउ मेनी इयर्स पेरेंट्स विल गेट ए परमानेंट रेजिडेंस? दिस इज आस्क्ड बाय सतवंत सिंह। जी सर, मैंने पहले भी बताया कि बच्चे का जो एलिजिबिलिटी होती है वीजा की, वो वही होती है जो माँ बाप की का स्टेटस होता है। अगर माँ बाप के पास स्टूडेंट वीजा है तो बच्चे को भी जो लीव टू रिमेन मिलेगी वो एज ए चाइल्ड डिपेंडेंट ही मिलेगी ऑफ द पेरेंट ऑफ हिज पेरेंट्स। ओके फाइन। तो उसके बाद उसका स्पेशल वीजा उसका नहीं है। थैंक्स वेरी मच, आपने इतने आंसर दिए, इतने क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। पहले ऑडियंस प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट लिखना आपको वीडियो कैसा लगा है, ताकि चौहान जी को मोटिवेशन मिल सके। चौहान जी, मेरा क्वेश्चन आपसे एक ये है, 2 है। पहले एक तो आपके बारे में, पहला आपको मेरे साथ बात क्या अच्छा लगा आपको मेरे चैनल में, क्या फीडबैक लगी आप मेरे से बात करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? क्या व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट माय चैनल? Yes, I mean आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें जो इमिग्रेशन लॉज हैं तो ये दे आर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। तो जो ऑब्वियसली कुछ लोगों के सवालात हैं जो अगर आप इजीली उन्हें कम्युनिकेट कर दें तो ये भलाई का काम कर रहे हैं इनफैक्ट। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एंड इट्स बीन प्लेजर लाइक being a part of this effort that you're doing. I'm not a solicitor, I'm just inviting you people because you guys are experienced and you got a license and you can tell them exactly what they need to do to follow the UK visa rules. थोड़ा सा बताइए जो बच्चे आपको फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे ऑडियंस देख रही है, देखिए मेरा इसमें बीच में अगर कोई आपको अप्रोच करना चाहे किसी भी केस के लिए करना चाहे फ्यूचर में अपने इमिग्रेशन मैटर के लिए, तो बताइए आप किसी से स्पेशलाइजेशन है फर्स्ट और वो आपको कैसे अप्रोच करें। मैं आपका नीचे नाम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूंगा ही दूंगा, वो मेरे पास लिंक है, पर बताइए आप किसी से स्पेशलाइजेशन है और बच्चे आपको कैसे अप्रोच करें अगर उनको फ्यूचर में चाहिए आपसे कोई एडवाइस। Okay, जिस तरह मैंने बताया कि for more than 17 years I've been dealing with immigration laws. So basically my expertise are in all sort of visa applications, appeals, judicial review, point-based system, non-point-based system, anything relating to immigration. So I have been dealing, so I have vast experience in मेरी अपनी firm है चौहान solicitors के नाम से। We are based in central London, which is close to Moorgate Station on Northern Line. Okay. So, our website address is chauhansolicitors.com. So, anyone who wants to contact me, they can contact through my website. Okay. थैंक्स वेरी मच चौहान जी, आपने टाइम दिया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं और आप पहले गेस्ट हैं जिसने मुझे अप्रोच किया है डायरेक्टली और मैं बहुत खुश हूं। मतलब आगे मैं खुद लोग को ढूंढता था, आप बहुत ही अच्छा मतलब कि आपने गाइड किया बच्चों के और इतने क्वेश्चंस कोई नहीं दे पाता जितने पेशेंस में आपने दिए हैं। आई एम श्योर माय ऑडियंस इसको अप्रिशिएट करके वीडियो को लाइक कर करेगी। थैंक्स वेरी मच। तो गाइज प्लीज आगे भी मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लेकर आऊंगा। ऑन द मीन टाइम गाइज प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहे खुश रहे, बात रहे और मेरे एक नए वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे पास 17 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट इन ब्रिटिश पासपोर्ट
and remote control channels in your hand, and please come to Instagram if you want to become my friends live over there.